मालक देखो कल्या किसी लेनू किले आया को पल पल दे हिसाब लेना मालक तो दान पुण्य ते सिमरन किना गीता कहना घोर दास खजाना सिमरन बाजो तेरा की है मोर। बाणी श्री श्री 108 स्वामी खजानदास गिरी जी महाराज शब्द गुरु गति पनौटा साहेब जम्मू। उठ प्यारे नींद त्याग पिछले पहर भजन नू जाग। उठ प्यारे नींद त्याग पिछले परम सत्कार जो गुरु रूप गुरु के शासन की हो आज जो जिस संबंध जैसे साझे करते रहे हैं श्रीमती आशा देवी जी उन्होंने समुचा परिवार श्री बलदेवराज जी सपुत्र अर्जुन कुमार जी और मीना अपने परिवार की जो माता के रूप में पत्नी के रूप में उन्होंने अपना जीवन अपने घर परिवार गुजारिया। उन्होंने चले जाने के बाद बच्ची है जो परिवार वाले बड़े प्यार सत्कार के नाल साध संगत की सेवा कर रहे हैं और तमाम संगत रिश्तेदार इस छाए महीने बत हुए नहीं आओ परिवार वाले ने गुरु घर के सत्संग का प्रबंध भी उन्होंने करवाया है। बेनती है कि आओ सारे परिवार वाले इस संगत में बैठ करके एक गल की पछाण करिए। वो गल जी है बेशक दुनिया रची है मखलूकात अपनी संसार में परमात्मा ने हुक्म लाई है। बेशक संसार में जितने भी जीव पैदा किए ने महाराज जी वो सारे के सारे अपने कर्मों के बंधनों में मुक्त होने वास्ते आए हैं। सतगुरु ने भेजा इसे करने वास्ते। लेकिन इतने जो साड़ी स्थिति है साड़ी जो मन की दशा है संसार के वस्तुओं का पाना उन्होंने अपने जीवन लैके चलना और उन्होंने ही फिर अहंकार लैके अपनी मन की दशा जी है वो जो परमात्मा की बात चलनी सी वो नहीं चली ना चलाने की कोशिश की थी। जे इंसान ने कोशिश नहीं की थी तो मतलब ये कि महापुरुषों ने अपनी राय बदल दी है। अपना जो हुक्म है परमात्मा का लैके आए मैंने वो हुक्म को माना छड़ देता है। ये नहीं संत महापुरुषों केवल एक हुक्म की पहचान हुई है
ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਇਆਕਾਰੀ ਲੋਕ ਕੌਮੇ ਹੰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮ ਘਟਨੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਆਏ ਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਚੂਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬਦਲ ਰੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਖੋ ਦੋ ਹੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉਤਕਦਾ ਪਾ ਤਕੜੀ ਕੋਲ, ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹੀ ਨਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਰੂਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲਿਪਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਇਹ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਰੀ ਗੁਰਮਖੋ ਸਤਸੰਗ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਜ ਸੀ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਸਹੀ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਦੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ये संगत ही है जिस आके जीव अपने आप को निमाना आके कहता है। इस करके निमाने पर झुकन में देरी जी है मन की दशा बदल जाती है। इस करके कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं, कहते हैं काम क्रोध लोभ अहंकार अगर ये सीमा में रहने तो तुहानूं फायदा दे। असीं क्रोध करने, गुस्सा करने, असीं क्रोध करने, गुस्सा करने तो वो हालात बिगड़ भी जाते हैं तो सबल भी जाते हैं। बच्चा अगर गलती करता असीं क्रोध नाल उसनूं ठाकांगे नहीं, उसनूं असीं नहीं अगर रोकांगे। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बथेरा प्यार नाल मनाया भी या तो स्कूलों नहीं मनता, फिर उन्होंने असीं क्रोध के नाल थोड़ा जा करते हैं तो डर पैदा होता तो जाता है वो क्रोध भी क्रोध ही होता है। अगर उस क्रोध में बात करते बच्चे की जिंदगी समझ जाती है तो होती चाहिए। इस करके प्यारे गुरु कोई ना के हाथ नहीं है, हालात कोई भी विषय होता है सानू दुख नहीं देता, सानू सुख देता। इस करके सतगुरु महाराज जी कहना कि तुहानूं इन्हां गल्लां दा पता लगेगा जदों तू अपने समर्थ नूं, सेवा नूं, भजन नूं अपने हृदय विच ड्यूटी समझ के करेगा कि नहीं जिथे मैं संसारी काम कर रहा है, जिथे मैं अपने कारोबार करता हाँ, बड़िया मेहनत करता हाँ, बड़िया मुश्किल करता हाँ अपने घर को चलाने वास्ते, तो मेरे सच्चे पातशाह ये तो तेरा दुनियावी काम हो गया, पर एक तेरा काम है। मैनू नहीं पता, मैं तो सत्संग सुनिया है कि 184 जून सपाई मानस को परम दी बढ़ियाई इस पौड़ी के जो नट के आए जाए भाई। अगर मैं इस पौड़ी को चुप गया, मैं कारोबार में लिप्त रहा, मैं इस गल की सोची नहीं की, मैं इस गल के अपना अपने आप को सुधारिया नहीं, जानकारी नहीं, पता नहीं किया तो महाराज जी मैं कल तेरे दर में आना या तेरे दर घर में जाना तो की हूँ लैके आवा। इतने मैं मन के चाह पूरे कर ले अपने, इतने मन के करके मैं कई लड़ाइयाँ कर लिया, कई पढ़ाइयाँ कर लिया, कई माड़ा चंगा कह लिया, कई सुन लिया, पर आखिर दुनिया किसी साढ़े में जाना है उसे तो मेरे अमल मेरे अच्छे कर तो महाराज तकने हैं। पर जो वो कर्म मेरे नहीं हुए तो महाराज जी तुम नाराज होना है, क्योंकि इतनी आस्था इतनी स्वास्थ्य में पूंजी दे करके तेन कली को खर्च खराबा करके इतने घोट में आ गया। ये प्यारे गुरु को जिस तरह साडा पिता जरा साढ़े सचमुची कर रहा है साड़ी कामयाबी वास्ते कि पुत्र स्टूडेंट सक्सेसफुल है, सफलता प्राप्त कर ले, मेरी सारी पूंजी के वास्ते है। तो जो पुत्र जरा है वो मौज मस्ती में रहता है, काम काज करता नहीं, पढ़ाई पढ़ता नहीं है, बस कहता है जो पिता का मेरा ही है तो तेरा ही है। पर तू कहते हैं पुत्र जड़े 3 प्रकार के होते हैं, पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, पुत्र कबूतर सपूत्र। ये कितना पता लगता है? पुत्र वो होता है जिहड़ा अपने माँ बाप की जायदाद जे प्यो 10 रुपये या 100 रुपये दिता है, वो अपनी जायदाद जी प्यो की जायदाद 100 10 50 जिन्हें भी 100 10,000 कुछ भी है वो ना घटाता है तो ना बढ़ाता है, वो खर्च खराबा भी करता है तो जिले मतलब 10,000 तो मैं 100 रुपया खर्चा कमा के फिर 100 पा दिता है, अपना गुजारा भी करी जाता और अपने पिता की जायदाद में बरकरार उन्होंने कहते हैं पुत्र। तो कबूतर वो होता है प्यो ने दिता 10,000 रुपया लै पुत्र कमाई करके आई, वो कमाई तक कहते नहीं 10,000 भी खर्च करके आ गया, खाली हो गया आ गया, वो होता कबूतर। बाहर जाके प्यो से अखा कढ़निया, प्यो ना लड़ना, तो प्यो की जायदाद हथ रखनी कि मेरी है ये कितने लै गया है। कई बार देखिए प्यो का कतल भी हो जाता है, जायदाद के पिछले पुत्र कर छड़ते पुत्र करते कहते मापे होंगे पुत्र पुत्र हो जाते। तो इस करके महाराज कहते कि सपुत्र कौन होता है? सो पुत्र सपुत्र वो होता है जेड़ा माँ प्यो अपने पुत्र लिए कुछ खर्च करता है, कुछ दहता अपनी लैके कमाई कर अपना काम काज कर, वो ये गल समझता है कि मेरे पापे ने मैंने 10,000 दिता, मेरे कारोबार चलाया, मैं हम 20,000 करके दसना, जे पापे ने मैंने 10,000 दिता तो मैं 20,000 करके मोड़ना है। तो बाबा थोड़ा शुक्रिया
पापा तुहाडी मेहरबानी, तुसीं मैनूं काम काज खड़े कीता है, मेरी मदद की है। मैं हकदार नहीं तुहाडी जायदाद दा, मैं तुहाडी सेवा नहीं कर सकता, मैं हकदार जेड़ा पुत्र की सोच रखता है कि अपने पिता की जायदाद को बढ़ाना, 100 का 200 करके दसना, 10,000 का 20,000 करके दसना, पुत्र भी सकून लेता है, आराम लेता है, सुख लेता है, मजे लेता है, तो प्योर भी होती है, सुख शांति होती है कि लाइफ मेरा पुत्र होना अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मैंने चिंता करने की कोई लोड़ नहीं, हूँ आप भी खुआएगा तो मैंने भी खुआए। वो होता सुपुत्र, वो मालिक नाल प्यार नहीं करता है, कि आंदा संगत बह करके तो वो अपना भजन सेवक भी करता है, सेवा भी करता है, लंगर लगता है, सेवा बताता है, कि जोड़े नहीं करता है। ये सब पुत्र के काम जिस पर माँ बाप ने देंगे, जे माँ बाप की 50 साल 100 साल की हो सकती। आज माँ के साथ दुखी क्यों नहीं? तो दुखी इस करके हम तो अपने औलादा हाथ दुखी है, जिस तरह वो कहते वो करते हैं, वो अपनी मर्जी करते हैं, जिस करके सारे माँ बाप जोड़े ने वो भी चिंतित हैं सारे भी ये गल नाल की बनेगा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी सानू इस करके गल समझा रहे हैं कि सारा जीवन जाना किधर ही जा किधर रहा है, ये थोड़ा सा विचार करना है। महाराज जी कहते जो संगत नाल जुड़ करके अपने गुर चरणों में नतमस्तक होना, तो तेरे पंथ जो निराला मार्ग का रचिया होया है, तो चल करके अपने आप को अपने उस भाव में खड़ना है। इतने गुरु सहाय होता है, इतने गुरु सहाय होकर के तेरे मार्गदर्शन करता है और तेरे दुख सुख में हर वक्त तेरे नाल होता है। एक व्यक्ति जिसका बहुत कारोबार है और मालिक नाल बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बड़ा बड़ा कारोबार है, क्या होता है उसनू यकीन है कि महाराज मेरे नाल है, महाराज मेरे नाल है। तो किस तरह पता लगता से कहते से जो चलता सी ना ते 4 पैरों के निशान लगते, 4 2 अपने 2 मालिक, वो दिखता से पैर लगते सी कि मेरे नाल मेरा महाराज ही चल रहा है। यकीन सी कारोबार बड़ा बुलंदियां दसी, अच्छी नौकरी, अच्छा कारोबार। तो कहते हैं सारी उम्र अमीरी नहीं रहती, सारी उम्र गरीबी नहीं रहती, ये दुनिया के दुख सुख चलते रहते हैं। इसे करके मालिक को लगता है कि ये सुख में मेरा ना, दुख में मेरा ना लेता, सुख में लेता कि नहीं लेता। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। ये सुख में सिमरन तो होता ही नहीं है। साडी फितरत है कि असीं जदों दुख में होंदे आ उदों माड़ा मोटा महाराज नाम ले लैंदे आ, जदों सुख में होंदे उदों वैसे हो जाते। ये साडी फितरत है। जिसको हर संत महात्मा गुरु महाराज जी परेशान है, वो तो हमें एक सामान्य जीवन देना चाहते हैं। दुख हो सुख मेरे के ऊपर प्यार करना आज देखता है। इसका कारोबार आस्ता आस्ता घटना शुरू हो गया, घाटे रहने शुरू हो गए। बड़ा कारोबार से घटने करने शुरू हो गए। जो लोग घटने शुरू हो गए, हर चीज तो महताज हो गया। तो महाराज भी याद करता है कि महाराज तो मेरे नाल है, मैंने कहा घाटा आया। जो निशान देखता है, आज 2 निशान लग रहे, 2 निशान लग रहे। तो महाराज जी को ये कहना शुरू कर दिया कि कहते सी महाराज जी को भी सारा का सहाय होता है। आज महाराज भी मेरा मेरे को हो गया है, तो पैरों में निशान सुख विच मेरे नाल बड़ा तुर के रहता सी, मैं मनता पूरी करता सी, मैं हर सुखना करता सी, मैं हर एक करता सी। आज मेरे को पैसा नहीं दिया, आज मेरे को दुख दे बदल छाए मेरे ऊपर, तो आज महाराज जी मैं तो मुख मोड़ गया, बड़ा लाभ दे लगता, बड़ा कुछ कर लगता। लेकिन महाराज सच्चे पातशाह जी ने आकाशवाणी हुई, पात्या हुई, कहना पुत्र अगर जी मैं कदे भी अपने सिख
सेवकां तो वाक नहीं होता। ये तेरा भुलेखा है, तू एक पैर के निशान देख रहा, तू ये लिखा भी पैर के निशान है कि है पुत्र, आज तू दुखा में आज तो मैं गोदी चुकिया होया है, ये पैर के निशान मेरे है, तेरे थोड़े, तेन तो मैं चुकिया होया है, अपनी गोदी में बिठाया होया है। तू कहता नहीं हाँ ये कर्मा का लेना देना है, कदे दुख है कदे सुख है, हर वक्त सुख भी नहीं है, हर वक्त दुख भी नहीं है। बस तेरी मन की सोच दुख सानू परमात्मा ने वल एक इशारा करता है। ये हर एक ने अपना अपना कर्म देना है। जे धी पुत्र है, भैन भरा है, पति पत्नी है, माँ पिता है, तो हर एक ने अपना अपना कर्म देना है। एक दूसरे के कर्म नहीं बनाना है। जे पत्नी कर्म करेगी तो पत्नी को बनाना पड़ेगा, जो पति कर्म करेगा तो पति को बनाना पड़ेगा। कर्म किसी से कोई नहीं बना सकता। कर्म अगर बना सकता है तो केवल संगत बना सकती है, गुरु महाराज बना सकता है। कर्म अगर माफ करने वाला कोई है तो गुरु महाराज है, गुरु महाराज संगत। कई बार तक क्या हमारा अगर तो प्रेमी गलती करके आना सी तो संगत जो बड़ा बुरा होगा। संगत बैठे मतलब बैठे उन्होंने आजाद तो नहीं है संगत बैठे थे, पर जब गुरु कृपा करते तो हाल बुरा होता ही उनके अंदर तेरी आत्मा से ना वो जुड़ी जाती है, उनकी आत्मा से व्याकुल करती थी। शैतानियां जड़ियां हैं, मानवीय शैतानियां आत्मा को नहीं करती। महाराज कहते होते थे अगर कोई माफी मंगा है, गलती कर रहा है, तो हाथ जोड़ के बैठा है तो महाराज जी कभी माफ नहीं करते होते। महाराज जी कहते हो संगत जोड़ा खलो के संगत को माफी मांग रहा है। ये तो पता लगा कि संगत माफ कर सकती, संगत कोई पालो कोई गल करके तो देखिए तो संगत विच मेरे सतगुर बसते नाम जपन का भेद होता। संगत ये कट जिहड़ा है वो कई तरह का होता है। वोटा वाले का भी कट होता है, कोई तमाशा देखना होता भी कट होता है, कई तरह के कट होते हैं। लेकिन कट किसी ने माफ नहीं करता। अगर माफ करने शक्ति है तो केवल संगत है। तो संगत बड़ा बर्दाश्त नहीं करती है, वो तो राम दिन याद करके वाले इस करके प्यारे गुरुओं को गुरु सच्चे पातशाह जी अपने हिसाब नाल जो अपने नाम मिलन की जो कला है, ये चीज जितने ही आए हमें परमेश्वर को मिलन वास्ते है, जितनी आत्माओं बैठिया ने सगावत आत्मा ये सारे परमात्मा में मिलन वास्ते है कि नहीं। जो सतगुर के प्यारे जो होते जो संगत रूप में आए होते हैं, इन्हों में एक ही ज्ञान होता है कि तुसी परमात्मा नाल मिलो और परमात्मा की गल मान के परमात्मा के दर तक पहुंचो। और जो लोग पहुंच करके मतलब होदियां ने अपना सब कुछ बाहर होते हैं जी, मेरा मुझे कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा मान है जी। और हमारा संकल्प जरा है एक दिन समाप्त हो जाता है, सिरे चढ़ जाता है। इस करके महाराज जी ये कभी शिकवा नहीं करना, दुख आवे तो कभी शिकवा नहीं करना अपने महाराज से, अपने परमात्मा कभी भी नहीं करना। इस तरह समझो कि मेरे महाराज ने मैंने गोदी चुकिया हुआ है, बड़े दुखा भी होते केवल असी होने दुख की घड़ियां है भाई, बड़ा बड़ा दुख की है। कबीर साहब जी महाराज जी वन की संगला नाल हाथी अगे सुट देता, कितना बड़ा दुख है। यकीन हो गया कि हाथी पुलिस को पैरों में कुचल के मार देगा, लेकिन जो अपने महाराज जी नाल प्यार करते हैं, जो अपने महाराज जी किसी जान निशान कर देते हैं, उन्होंने पता लग जाता है कि मेरे विच परमात्मा की खान वाला केवल मेरा वो हद होती है, ठिकाना होता जिन्हें जाके पता लगता है गुरु की है। आज के गुरु के लोग चपेरा मारना शुरू कर देते, उन्होंने की पछाने संगत की पछान कर दिया। तो इस करके प्यारे गुरुओं को ये चीज जी है महाराज क्या कहते हैं भाई, ये अध्यात्म की दुनिया है, ये दुनिया आया ये अध्यात्म की रूहानियत की दुनिया है, जिस आके इंसान ने अपने आप को पाक पवित्र करना है।
ये रूप पवित्र जो होंगी है ना, तां करके इस संगत का सामने प्यार होता है, तां कि जाकर संगत की सेवा का दिन हुक्म होता है। इस करके दूसरे पासा भी बार बार यही गल नहीं करी करते सन कि भाई जन जिन्होंने मना में थोड़ा बहुत प्यार बस गया तो चलना का इन्होंने संभाल के रखना, इन्होंने संभालना। ये मन थोड़े को खोएगा, मन थोड़े को ऐसे कर्म कराएगा, ये वो जो तुम माल कमाया है वो माल टूटे है, खत्म हो जाएगा, कुछ पल नहीं देगा। इस करके गुरु महाराज जी पास अपनी बाणी में की कह रहे थे, हाँ जी, अमृत वेले पाग बना ले, मस्तक दे विच सुरती ला ले। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, महाराज ने अपनी बाणी में जो लिखा है। फिर महाराज जी कहते गल का कुछ दस दी उन्हें कितने चलना कितना, इसकी शुरुआत कितना होनी है, शुरुआत कितना होनी है। बेशक किसी नाम लिया चाहे नहीं लिया, जरूरी नहीं नाम लेने वाला नहीं सत्संग है, कोई समझ नहीं। जिन्होंने नहीं नाम समझ नहीं जुड़िया है, जुड़ना है हमारे नाम ब्रज जुड़े नहीं है, बस वो अपनी गल लेकर चल की पिछले पहर भजन दिया, उठ प्यारे नींद त्याग पिछले पहर भजन दिया। आज की करना प्यारा ये तो सारी सारी रात घराने मार के सुता रहना है, दो की घर उठ पिछले पैर उठ, तेन नहीं पता की करना है, तू उठ पैर बाहर अंदर हो, मुंह हाथ धो, दो महाराज ही शब्द बोलना, गुरु ही शब्द बोलना, नहीं उसका पता तू कह दो महाराज सच्चे पातशाह तेरी कृपा तेरी मौज हुई, आज मैंने तू उठा लिया, मैंने नहीं पता मैं की करना है, पर महाराज जी तू जितने कितने भी है ना तुम याद कर, महाराज की कृपा कर, मैंने दस्यो मैं कौन है, मैं कितों आया, मैंने नहीं पता। और सैनिक और करिए की जो प्रयोगती है, जिन्होंने नहीं नाम सुन लिया वो बस बार बार के बह करके बस महाराज का याद कर, कृपा करेंगे ते गुरु गुरु मतलब गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज, जिन्होंने नाम शब्द लिया उन्होंने पता कितना सी नाम करना है। एक प्रक्रिया है उठ प्यारे कई इसी तरह समझे हैं उन्होंने नींद सोना, लेकिन सब कुछ क्या है उठ प्यारे नींद, असि नींद को प्यार देना पिछले पैर 4:30 5 बजे उठो 4 बजे उठ प्यारे नींद त्याग पिछले पहर भजन ते जाग, भजन का नहीं पता, जिन्होंने पता करना, जिन्होंने नहीं पता है वो बस बैठ करके तो अगले शब्द में अमृत वेले होएगा, तेरे भाग बनने शुरू हो जाएंगे, तेरे भाग बनने शुरू हो जाएंगे। साढ़े जो अंदर परमात्मा बैठा है वो तेनों हरकत करनी शुरू कर देगा, वो तेनों बोलने दौरान दसना शुरू कर देगा, चंगे माड़े का ज्ञान तेन होगा पता, तेन माड़े कर्मों को बचा लेगा, नहीं ये काम नहीं करना, ये करना तुम तैयार हो काम करना, लेकिन अंदर एक आवाज उठती है नहीं नहीं ये नहीं करना, ये माड़ा हासिल किया। ये कौन है तैयार वाला? परमेश्वर। वो क्यों आया था देखो, क्योंकि किसी भी भजन शुरू कर देता है, भले तो नहीं पता जे अपने तरीके से करना शुरू करता है, रब जी ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ 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 ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਕਰ जो मिजाज करता है, एक तो ना बहुत प्यार करता है, वो तेरी हर किसी को करता है, तो दो टुका ही माना, एक भरा तेरा जितना बड़ा प्यार करता है यार, तेरे लिए दुआ करता है, ये बच्चे सुखी रहन, ये बच्चे चंगे रहन, ये बच्चे महाराज तरक्कियां करन, वो तो ही बुलाते ही नहीं, एक ही है, यही कर्म हो गया, एक तेरे दुआ कर रहे हैं, दो दिन कर रहे हैं, हर एक
दुआ करनी कि महाराज जी सुनो। एक बार गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी को सुखना जी चला गया मिलने वास्ते चला गया तो वो बड़े पुराने कपड़े पाए हुए थे वो उसे रिंजे गए महाराज जी मिलना है उन्होंने फड़ के कोटिया जेडे पाटे हो गए कपड़े हो पा गए खून खान भी निकला तो शिकायत होती है अंदर महाराज जी बाद किस तरह गलबात हो गई उन्होंने महाराज जी ने बुलाओ महाराज ने संगत बुलाया अगे बेचारा लव लुहाना होया कट्टे कपड़े पाए साथ बड़े खड़ा महाराज जी बड़ा गुस्सा इन्होंने जायज मारे तो महाराज जी उस सेवक को पूछते हैं कि मैं देना सजा नहीं चाहिए पर तू दस की सजा दूंगा तू दस मैंने बहुत कितने महाराज जी ने बोले हाथ को किया है गुरु महाराज जी ने किया है दस मैनू तू दस मैनू की सजा दी तो गुरुमुख ने किया गुरुमुख ने किया महाराज सच्चे पातशाह जी इन्होंने अखियां बख्श इन्होंने अखां बख्श तां पछाण कर गुरुमुख की चीज तां पछाण उन्होंने मारा नहीं अखियां बख्श भलाई सो रीत गुरुमुख की रीत है ये नवाने पैदी है सुख दुख अपना सिर से चलना इस करके गुरु महाराज जी कहते हैं ये है जिन्हें अंतर आत्मा परमात्मा का मलाप वो इस गल अच्छी तरह हाँ सहज पुरने नूंगी रोग विकाल बेशक तेरे मन में स्वप्न तेरे बात चिंता करना मेरे चिंता करना कोई खाना चिंता आना है वो काम करना या जो काम करना ही बेशक मन में चलाने ने तेन उतारना है पर तू परिवार अंदर ही तू अपने आप को सहज के अवस्था चला के करके बस ऐसे अपने ध्यान हासिल करना है कोशिश करनी है मन में तेरा ध्यान को टिकन नहीं देना पर तू करनी कोशिश सहज ध्यान मार्ग अंदर ना खुल जावे जो देखे बुलहारे जावे ये तेरा ध्यान जेड़ा है ये ध्यान करे करो तो जो असी अकांत विच होने आ जां कोई एक तरह की विपदा कोई टेंशन कोई हो जाती है तो असी महाराज जी चिंता करते हैं ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੰਡਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਏਗਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਏਗਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਟਿਕਾਏਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਟਿਕਾਏਗਾ तो तेरे अंदर महाराज सच्चे पातशाह जी का जो दुनिया में जोत भी कहते हैं प्रकाश भी कहते हैं वो कहना तेरे फोरहेड के विचकार चमकनी शुरू हो जाएगी हो सकता जिन्होंने नाम शब्द नहीं लिया अगर उस प्रक्रिया चल तो हो सकता उन्होंने भी ला सकते गुरमुख आएगी लेकिन इतना राग इतना प्यार पाने अंदर कल परमात्मा ने याद करोगे ये प्रकाश पाने आ सकता इस करके इस प्रक्रिया में जारी रखी क्योंकि तेरा जो कल्याण होना है तेरा जो मालना देव हाँ और तुम्हारे करी दीदार अंदर बसाया सो संसार फिर बहुत सारा तुम सुते सुते करते करते नींद आ जाए नींद दे विच कोई सुपना आ जाए सुपने दे विच संगत दर्शन हो जाने हो सकता और संगत दे विच तनो और रूहां दे दर्शन हो जाने जेड़ियां अमर होईयां ना कहंदे दुनिया दे दर्शन ना मिलदे हो भाई ये तो पता चल गया दुनिया दी निर्माण सुनने तक पुराण लगा जी में दिखाई नहीं गल्लां इतना करियां होना यकीन नहीं आता कि दुनिया में चला गया अगर इस तरह ना तेरे अंदर हृदय अंदर संचलन चल रहा है मालिक की कृपा तो महसूस हो रही है तो अजीब का आनंद आ रहा है तो ये अखा पे तो मेरे नाम की दुनिया चल रही है इन्हें देखा
कदे भी करते तो मन नहीं लगता क्योंकि आनंद से कभी ना आया। लेकिन कई का आता है वो चला जाता एक अजीब सुकून आता है, तुम खुशी महसूस करते हो। बेशक तुम बड़े दुखा में हो, बड़े गरीब हो, नहीं कुछ भी साढ़े को, पर जब भी तुम माल के नाम का ध्यान करते हो, एक ऐसा दरबार की ऐसी माल की दरबार की ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੇਵਨ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਲ ਤਸਕੀਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਸ, ਉਹ ਦੇਵਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ बीज दे अंदर रुख फल होवे, दास खजान कोई धरती होवे। गुरु महाराज जी ने दास में बड़ा सोना इशारा दे देता है कि प्यारो मैं जो कुछ भी अनुमानी के माध्यम से दसिया पानी जो सत्य वचन समझाए ने ये नहीं है। मिसाल ये कि जिस तरह के बीज के अंदर छोटा सा बीज होता है तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਅੱਖਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। नाम शब्द बड़ा बड़ा नाम शब्द नहीं है, तो शब्द मिलता है वो बड़ा बड़ा नाम नहीं है। अक्षर का जो उस जो नौ पता नाम लिया जाता जो पता लगता है नाम है तो उन्हें यकीन नहीं होगा, यकीन मारे कहते हैं नाम मिला जुगती मिली पहले ही सोचना शुरू कर दो ये नाम की मारेगा नहीं मारे कहते आ नाम है आ जुगती है। इस जुगती के नाम उस नाम की बीज बीजना है। वो जो उस जुगती नाम रूह चलती है अपने अंदर उस बीज बीजती है तो फिर ध्यान का पानी देती है, सिमरन के राही बरकरार रखती है। तो प्यारे दोस्तों वो ही अंकुर बन के बीज जो है वो कसूर करता है, तरह फूल लगते फल लगते हुए ना सब बदल सकती है। आपने आए हो जब अपने बीज पूजे किसी को सारी दुनिया आती है आए बैठे सोए खाए भोगे सोए बात नहीं बांध आया बांध बोले तो महाराज कहने लगे नहीं प्यारे जितनी भी तेरी उम्र हमें थोड़ी है होती है जो भी तेरे ज्ञान हो जो भी तेरे नाल का ज्ञान आ जाए उससे कम तेरी खोज करना खोज अंदर ही होनी है। तेरा दास मान करेंगे ऐसा कोई संत जेड़ा मोरे मोड़े दिला दिया बारा, ऐसा कोई संत मिले। ऐ मेरे महाराज मैंने कोई ऐसा परमेश्वर का प्यारा मेरे मथे ला मेरे दर्शन ला जो मेरे वचन समझे और मेरे मन की बातों मेरे दिल की बातों मोड़ दे। ये दुनिया पर बड़ी हुई है मैंने सच्ची भाषा कितना कर मैंने तेरे बारे की बात मेरा